السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناول جاڑے من کے ایپیسوڈ نمبر 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ زیان اب تو وہ بھی جا چکی ہے، تم کب تک مجھے ٹالتے رہو گے؟ عشا نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا جب دوسری سگریٹ جلا رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت پرل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ بابا سے بحث ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس پورے ہفتے میں وہ گھر پر کم اور کلبز اور ہوٹل وغیرہ میں زیادہ رہا تھا۔ کیوں بیٹھے ہو میرے انتظار میں؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس سے مروت نبھانی تو شروع سے نہیں آتی تھی، اب بھی دو ٹک بول گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب تم منہل کو چھوڑ چکی ہو تو مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہو زیان؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر خفگی سے بولی زیان۔ ایک نظر اس کے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا۔ ابھی بیوی ہے وہ میری عشا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ عشا کو سمجھ نہ آیا آخر ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ بولو۔ دبی دبی آواز میں چیخی تو وہ لب پیچ گیا۔ دیکھو عشا۔ ہیلو۔ دونوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو فہد ان کی ٹیبل کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ دونوں کو؟ دونوں پر ایک نظر ڈالتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، جوائن کرو ہمیں۔ زیان اس کی نظریں سمجھ گیا تھا مگر نظر انداز کرتا عشا بھی مروتاً مسکرا دی، ورنہ اس کی موجودگی سخت زہر لگی تھی۔ اور کیسی ہے عشا آپ؟ فہد نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ فائن، ہاؤ آر یو؟ اس نے اخلاق نبھایا۔ میں بالکل فٹ۔ تم یہاں کیسے؟ مسلسل سگریٹ پیتے زیان نے اس سے پوچھا۔ یار بس آفس کی میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، ابھی ختم ہوئی ہے۔ تو بتا گھر سے بے ہو آئی بے آج کل تو؟ ایک نظر عشا کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ بس کچھ مصروفیت ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ زیان میں چل دی ہوں، مجھے مام کے ساتھ جانا تھا۔ اپنا موبائل اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی زیان نے محض سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، فہد نے اٹھتے ہوئے کہا مگر وہ اٹس اوکے کرتی نکل گئی۔ تو کر کیا رہا ہے یہ سب؟ اس کے جانے کے بعد فہد نے اسے گھورا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے بھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ بھابھی سے کیوں لڑ کر بیٹھا ہے کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا اب؟ اس کے طنز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی وجہ سے کیوں گھر چھوڑوں گا؟ جب دل کرے گا چلا جاؤں گا، سپاٹ لہجے میں کہتا ٹیبل پر پیسے ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں کی لڑائی میں میرب کا کیا قصور ہے، کبھی سوچا ہے؟ فہد نے اس بار کافی غصے سے کہا تھا مگر اپنی بیٹی کے ذکر پر یکدم ہی ٹھہر گیا۔ اس نے وہی نام رکھا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ دونوں میری ہی ہیں، جب دل چاہے گا مل لوں گا۔ گاڑی کی طرف قدم بڑھاتا عام سے لہجے میں بولا، مگر اس وقت ان دونوں کو دیکھنے کا شدت سے دل چاہا تھا۔ فہد بھی جھنجھلاتا ہوا اسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کار سروس ہونے گئی ہے، شرافت سے گھر چھوڑ مجھے۔ اس کا دیور نظر انداز کرتا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ زیان نے بھی سر نفی میں سر ہلاتے کار سٹارٹ کر دی۔ اندر چلے کیونکہ وہاں تو نے صرف سگریٹیں پھونکی ہیں، کھانا میرے گھر کا کھا۔ گھر پہنچ کر فہد نے اسے روک لیا۔ تیری بکواس سن چکا کافی ہے، اندر بیٹھی اس کی بہن سے جوتے نہیں کھانے۔ زیان نے اسے گھور کر کہا تو کہکا لگا گیا۔ نہیں، وہ بہت کم بولتی ہے، تھوڑا بہت سنائی کی، اب باہر نکل۔ گاڑی کی چابی لے کر کار سے نکلا تو زیان کو بھی اترنا پڑا۔ دونوں ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہ فہد کا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوئے، فرشی سلام کیا تو دوپر چھوٹی سی بچی سے باتوں میں مگن تھی۔ ہیں؟ تو وہ میری پرنسس کو کہاں سے لے آئی تم یہاں؟ فہد چاہتا ہوا اس کی طرف بڑھا جبکہ دوبا نے حیرانگی سے زیان کو دیکھا۔ دیکھ زیان، تیری بیٹی تیرے انتظار میں بیٹھی تھی جہاں۔ اسے گود میں اٹھا کر زیان کو دیکھا جو سن سا کھڑا تھا وہ اسی کے پاس آ گیا۔ زیان نے بےتابی سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ آج پورے 20 دن بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا چومتا چلا گیا۔ وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے باپ کو ٹوکر ٹوکر دیکھ رہی تھی۔ مائی لو۔ اس کا گال چومتا وہیں بیٹھ گیا تو بیٹی بھی شاید باپ کے لمس کو پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ مار کر کلکاریاں بھرنے لگی۔ توبہ نے دونوں باپ بیٹی کو مگن دیکھ کر حیرت سے فہد کو دیکھا تو مسکراتا ہوا کندھے اچکا گیا۔ توبہ میں نے علی کو کال کر دیا، وہ لینے آ جائے۔ اپنے دھیان میں دھانے رنگ کے قمیض شلوار میں جوڑا بنائے اپنی تمام تر سادگی لیے میرب کی پیڈر لیے کچن سے نکلی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر یکدم ہی ساکت ہو گئی۔ ساکت تو زیان حیدر کی نظریں بھی ہو گئی تھی۔ اس دشمنی چاق کو دیکھ کر وہ خوبصورت تھی مگر اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی معلوم ہوئی تھی۔ یہ ماں بننے کا روپ تھا یا کچھ اور وہ سمجھ نہ سکا، مگر آج اسے یہ ظالم لڑکی دل کے مزید قریب لگی تھی۔ ماہی علی بھائی سے میں کہہ دوں گی کہ تم ڈنر یہیں کرو گی۔ تم بھی اس کو دیکھ کر فوراً قریب آئی تھی مگر وہ رخ موڑ کر گیسٹ روم میں چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ تم میرب کو لے کر آؤ ان سے ابھی، اس نے کمرے میں آتے ہی بےتابی سے کہا۔ کیا ہو گیا ماہی؟ باپ ہے وہ، ابھی تو انہوں نے صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں۔ توبہ نے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں یہاں بیٹھی انتظار کرتی رہوں اور وہ شخص میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے جائے؟
आंखों में आती नमी को पीछे धकेल कर चीख पड़ी, माही कुछ नहीं होगा, वो क्यों लेकर जाएंगे, तुम बस हौसला रखो, मैं खुद इसे तुम्हारे पास लाऊंगी। उसने इत्मीनान दिलाना चाहा मगर उसे कहाँ चैन पड़ रहा था। बस ये खौफ बैठ गया था कि वो शख्स इससे इसकी बेटी छीन लेगा। तुम नहीं जानती शख्स, वो कहते कहते यकदम रुक गई क्योंकि वो दरवाजे पर ही खड़ा था और तूबा ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया तो वो उठ खड़ी। मनाहिल भी उसके साथ उठी थी। आप लोग बात करें, मैं किचन को देख लूँ, मनाहिल को इशारा करते बाहर निकलने लगी मगर वो इसका हाथ थाम गई। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं भी चल रही हूँ। जैन की नजरें खुद पर महसूस करती तूबा के साथ बाहर निकलने लगी मगर जैन इसकी कलाई पकड़ कर रोक गया था। सुबह तुम जाओ, मुझे बात करनी है कुछ। तुम्हें एक नज़र मनाहल को देखकर सर हिलाती अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। छोड़े, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती चीख पड़ी। जैन ने गुस्से से ले जाकर बेड पर फेंका, दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। मेरी जान, आप यहाँ बैठे, जरा आपकी मामा की क्लास ले लूँ। उसका माथा चूमकर बेड पर लेटा था, उसकी तरफ पलटा तो नफरत से रुख मोड़ गई। क्या कह रही थी, बोलो अब। उसके बराबर में बैठा तो वो करंट खाकर खड़ी हुई जैन ने तनकीदी नजरों से उसे देखा। मेरा अब आपसे कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मीरा के पास जाती बज़ाहिर इत्मीनान से बोली, हमारी बेटी, समझ आई। अगर ढील दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बकवास सुनता चला जाऊंगा। चबाकर कहते उसे कलाई से पकड़ कर खींचा और अपने साथ लगा गया। मुनाहिल ने दंग नजरों से इसे देखा, फिर तड़प कर उससे दूर होना चाहा। छोड़े मुझे, मेरा बाप से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर आप तक पहुंच जाएंगे। उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर दूर होती चीख कर बोले। जान की आंखों में अचानक ही खून उतरा था। क्या क्या बकवास की, फिर से कहना जरा। उसने धाड़ कर सख्ती से उसकी थोड़ी पकड़ी, वो करा उठी। क्या बकवास करी, जरा दोबारा कहना। उसका सहमा हुआ चेहरा ऊंचा करके अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरा। छोड़े मुझे, आपने ही कहा था आखिरी बार। वो मुश्किल कहते उसके हाथ अपने थोड़े से हटाने लगी। आंखों से तारों कतार आंसू निकलने शुरू हो चुके थे। मनाहिल, जान हैदर, अगर ये वर्ड तुम्हारी जुबान पर आया तो अपनी और तुम्हारी जान एक कर दूंगा, आई समझ। मीरब की परछाई तक तुमसे छीन लूंगा अगर ऐसा भी कभी सोचा भी तो। जोर से झटका बेड पर दे फेंका तो सदमे से उसे देखने लगी। आ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उठकर उसका गिरेबान पकड़ती चीख उठी। मैं ऐसा ही करूंगा और तुम जानती हो अगर मैं जिद पर आ गया तो क्या कुछ कर सकता हूँ। उसके गिर्द हिसार बांधकर जुनूनी अंदाज में बोला। क्यों क्यों करें ये सब, आपने खुद कहा था कि आप मुझ जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकते। मैं तो गलती थी आपकी जिंदगी। वो फट पड़ी थी। जियान ने बहुत गौर से उसका जुनूनी अंदाज देखा, जो बेटी के लिए लड़ने मरने को तैयार थी। मैं सिर्फ अपनी मीरब के लिए कर रहा हूँ, आई समझ। उसके बाल पकड़कर पीछे को झटका दिया तो वो यकदम ही चीख उठी। आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत गिर रहे थे, न जाने उसे क्या हुआ। झुक कर उसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। मुनाहिल ने तड़प कर उसे दूर किया। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत, समझे आप। नफरत से उसे देखती बेड से उतरी। खुले दुरुस्त करके बाहर आओ, घर चल रहे हैं हम अभी। उसकी बात पर मुनाहिल को अपना सर घूमता महसूस हुआ। मैं खुद आ जाऊंगी। मीरा को गोद में उठाकर बहुत हिम्मत से बोली तो वो चलता हुआ उसके पास आ रुका। जो कहा है वो करो, आई समझ। उससे मीरा को लेता कमरे से निकल गया। वो बेबसी से जाता देख एक बार फिर रो पड़ी। कुछ देर बाद बाहर आई तो वह फहद और तुबा के साथ बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसके आते ही उठ खड़ा हुआ। यार, खाना तो खा कर जाता, फहद ने गुस्से से बोला। नहीं, अब घर जाकर बीवी के हाथ का खाऊंगा। मुस्कुराकर कहते उसे देखने लगा, जबकि तुबा और फहद ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। तुबा अली से कहना मुझसे फोन पर बात कर ले, उसके करीब आकर आहिस्ता से कहा तो तुबा ने उसकी रोई रोई आंखें देखकर सर हिला दिया। इस वक्त कुछ भी पूछना ठीक न था। फिर वो इसे खुदा हाफिज करती जैन के साथ बाहर निकल गई थी। वो जैन के साथ घर में दाखिल हुई तो सब भी हैरान रह गए थे। किसी को भी उम्मीद न थी कि वो अपनी अनाकों पर से पूछ डालकर उसे ले आएगा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तमाम अफराद इस वक्त लॉन्ज में जमा मीरब को घेरे बैठे थे, जो अपने दादा की गोद में बैठी सबको परेशानी से देख रही थी। माही, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई तुम मिले आए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हिना ने पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते उसका हाथ थामा तो वो भी फीका सा मुस्कुरा दी। बताती भी क्या कि ये शख्स सिर्फ वसीयतें देने के लिए यहाँ लाया है। बेटा, मीरब को ऊपर ले जाओ, बच्ची झिंझला गई। मैं इसकी वीडियो बनवा कर भेज रही हूँ, चची जान ने मीरब को इसके गोद में देते कहा तो वो सर हिलाती से रूम में ले आई। आज पूरे 20 दिन बाद वो इस कमरे में आई थी। जहन के पर्दे पर फिर वही रात आ गई जब इसकी और जहन की आखिरी लड़ाई हुई थी। आंखों के गोशे फिर से भीगने लगे थे।
काश जियान हैदर, मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई होती, ताकि तुम्हारे बदल जाने पर भी मुझे कोई रंज ना होता। आज जिंदगी में पहली बार इसने खुद से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था, वो भी इस वक्त जब वह शख्स इसे खुद से बहुत दूर नजर आया था। यहाँ के मराकबे में खड़ी हो, रूम में दाखिल हुआ तो कमरे के बीचों बीच किसी सोच में गुम नजर आई थी। इससे मीरब को लेकर तंजिया लहजे में कहता बेड पर चला गया। मनाहिल उसे नज़रअंदाज करती मीरब के कपड़े निकालने लगी। ये शॉपिंग मीरब की पैदाइश से पहले ही कर ली गई थी, इसीलिए इसे ज़्यादा मसला ना हुआ था। माय स्वीटहार्ट, आपकी जालिम माँ ने मुझे इतने दिन आपसे दूर रखा। उसे अपने सीने पर लिटाकर मनाहिल की पुश्त को देखा। वो अपने नन्हे हाथों से उसके सीने पर हाथ मार रही थी। दे चेंज कराना है उसे। फासले पर खड़े होकर बोली तो जियान ने बस एक नज़र उसे देखा। अपनी तरह सबको चीनों की औलाद समझा हुआ है, जो हाथ लंबा करके दे दूंगा, करीब आओ। डांट कर बोला तो वह दांत पीसती बेड की दूसरी साइड आकर मीरब को उसके ऊपर से उठाकर चेंज कराने लगी। वो भी एक हाथ सर के नीचे टिका कर उसका जायजा लेने लगा। आज कितने दिन बाद उसका कमरा फिर से आबाद हुआ था, वरना कल तक यही कमरा काट खाने को दौड़ता था। खुद पर जब नजरें महसूस करके झिंझला उठी और तेजी से उठकर जाने लगी। फिर डलाओ मीरों की और बहुत एहतियात से, मैं अपनी बेटी के मामले में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने पुष्प पर उसकी गरजदार आवाज़ सुनाई दी तो पैर पटकती कमरे से निकल गई। माही क्यों गई तुम इस शख्स के साथ? अली की गुस्सैली आवाज़ स्पीकर में गूंजी तो वह बेबसी से लब काटने लगी। अली, मैं क्या करती जब वो खुद मुझे लेकर जा रहे थे, और अगर मैं ना जाती तो वो मीरब को ले जाते। उसने समझाना चाहा तो तुम इससे डर कर गई हो। उसका तो पारा मजीद चढ़ गया। नहीं अली मेरे भाई, मैं बस मीरब के साथ रहना चाहती हूँ और वो भी यही चाहते हैं। प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मलाह ने उसे कायल करना चाहा, मगर वह गुस्से में फ़ोन काट गया। आप माही से क्यों नाराज़ हो रहे हैं? वो बेचारी जियान भाई के सामने बिल्कुल बेबस है। निदा इसी के बराबर में बैठी थी। अली ने नागवार नज़रों से उसे देखा। जानता हूँ मैं माही को भी और तुम्हारे इस भाई को भी न जाने क्या समझते हैं खुद को। पूरी फैमिली ही पागल है। गुस्से से कहता उठा तो रीता ने तंग नज़रों से उसके बदलते अंदाज देखे। आप सारी फैमिली को कैसे कह सकते हैं? सब मोहब्बत करते हैं मुनाहिल से। उसने वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि अपनी फैमिली की बुराई तो हरगिज़ नहीं सुन सकती थी। ये एक ऐसी मोहब्बत थी कि बचपन से बड़े होने तक इन बहनों ने सिर्फ अज़ियतें झेली, और अब रही सही कसर वो शख्स पूरी कर रहा है। अली की साफ़गोई पर वो बेकसूर होते हुए भी शर्मिंदा सी हो गई। अल्लाह गवाह है, मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बहन समझा है। आंखों की नमी रोकते धीरे से बोली, चली जाओ अभी यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसे झिड़क कर लैपटॉप ऑन करके बैठ गया। आज शादी के कितने माह बाद अली ने पहली बार इससे इस तरह गुफ्तगू की थी। आंखों से आंसू खुद ब खुद आ निकले थे। हाथ की पूंछ से घायल रगड़ती कमरे से निकल गई। अली ने उसे जाते देखा तो गुस्से से लैपटॉप टेबल पर पटक दिया। वह इसे रोता हुआ देख चुका था। रामीन, मुझसे कल मिलो वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अब्दाल का मैसेज पढ़कर वो चकरा कर रह गई थी। आखिर करना क्या चाह रहा है ये अब? सर थामती वहीं बेड पर बैठ गई। एक बार मिलकर क्लियर बोल दूंगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। लब काटती खुद से उलझी थी जब मोहित कमरे में आ गया। क्या बात है रामीन, मैं काफ़ी दिन से तुम्हें कुछ डिस्टर्ब देख रहा हूँ। इज़ एवरीथिंग ओके? उसने चाहती नज़रों से उसे देखा तो उसने गड़बड़ाकर माथे का पसीना साफ किया। नहीं तो बस कुछ सर में दर्द हो रहा है। उसने मुस्कुराकर यकीन दिलाना चाहा। आर यू श्योर? उसका गाल पर हाथ रखकर पूछा तो रामीन उसे गौर से देखने लगी। अगर अब्दाल ने मोहित को सब कुछ बता दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? यही खौफ उसे उलझाए हुए था। क्या बात है रामीन? उसे सोच में गुम देखकर मोहित को तशवीश सी होने लगी। कुछ नहीं पापा, आई एम फाइन। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। मुस्कुराकर कति बाहर निकल गई, मगर मोहित को उलझन में डाल गई थी। जब से वो यहाँ वापस आई थी तब से वो कम कम इसका सामना करती, दोनों में बात ना होने के बराबर रह गई थी। जियान ने साथ वाले कमरे को मीरब के लिए नर्सरी की शक्ल दे दी थी। हर चीज़ पिंक और वाइट थी। जब मनाहिल ने 2 दिन के अंदर उसे मुकम्मल देखा तो बिल्कुल हैरान रह गई थी, क्योंकि वो बना ही इतनी खूबसूरत गई थी। किसी प्रिंसेस का रूम मालूम हो रही थी। एक इंतहाई खूबसूरत 2 सीटर सोफ़ा, मीरब के काठ खिलौने, अलमारी, इसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक दरवाज़ा अपने रूम में खुलवाया था। इतने अरसे वो दुआ के रूम में क़याम पसेर ही रही थी। कभी कभी जियान की मीरब से मोहब्बत को सोचती तो आंखें रब के आगे तशक्कुर से भीगने लगती। इसकी बेटी बाप की शफ़क़त से महरूम नहीं है। इसे रब ने ऐसा बाप दिया था तो कितना भी थका हुआ क्यों ना आता, मीरब को घंटों गोद में लिया रखता। उसे हैरानी होने लगती ये वही देव है जो इस पर अपना गुस्सा निकालने में एक पल नहीं लगाता। मगर बेटी के सामने न जाने इसका कौन सा रूप होता कि उसकी नई शर्ट्स भी खराब कर दी।
तो उसे शाबाशी देता और बेटी साहिबा उल्टी सीधी हरकतें करके खूब किलकारियाँ भरती। क्या है इसे, मुझे तो सोने का टाइम हो गया उसका। वो इसे गोद में लिए लैपटॉप पर काम कर रहा था जब वो ब्लू कॉटन के सूट में ढीला से जुड़ा बांध उसके पास आई। नहीं, वो जाग रही अभी। एक नज़र उसके दिलकश रूप को देखकर मीरा को देखा, जब आपके कंधे से लगी उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल देख रही थी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो 3 बजे तक इसके लिए जागू, महारानी को नींद नहीं आती और खाती भी अपने मूड से। यही से तो तब भी चढ़ गई थी। मीरा को घूरते हुए बोली, तो किसी और वजह से कब जागती हो तुम? अच्छा है मेरी बेटी सबक सिखाए तुम्हें। सियान की जुबानी बात पर वो एकदम ही सुर्ख पड़ गई। ठीक, फिर आप ही से सुलाइएगा, मैं जा रही हूँ सोने। ये रही फीडर इसकी। दोनों का घूरती दांत पीसते हुए बैठ के किनारे पर जाकर लेट गई, क्योंकि सोफे पर बाप बेटी ने कब्जा किया हुआ था। सियान ने एक नज़र इसकी पुष्ट को देखा, गुस्से से उठ खड़ा हुआ। आज सोकर दिखाओ तो मुझे। मेरा खुली फीडर उठाकर बेड पर आ गया। प्रिंसेस, आपकी मामा बिल्कुल आप पर नहीं, कहीं एकदम डिसओबीडियंट। उसके मुंह से फीडर लगाता आहिस्ता से बोला, मगर वो मुंह बनाकर रुख मोड़ गई, जैसे इसे बाप के पास से इत्तेफाक ना हो। मेरी बेबी को क्या चाहिए? इसे फीडर दूर करता देख परेशानी से बोला, क्योंकि वो पूरे पूरे मुंह बना रही थी। लो उठो, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल को ढूंढ रही है। टप दबाते मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो तभी हुई वैसे ही लेटी रही। जियान ने मीरब को इसके चेहरे के करीब बिठाकर खुद भी वहीं बैठ गया। नाहिल को अपने चेहरे पर नन्हे नन्हे हाथों का लम्स महसूस हुआ तो आंखें खोलकर अपनी बेटी को घूरने लगी, जब बाप के आगे से बिल्कुल घास नहीं डालती थी। उठकर इसे गोद में लिटाया और फीडर मुंह से लगाकर हल्के हल्के थपकने लगी, जबकि जियान को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। जियान ने एक नजर इसकी पीठ को देखा, सिगरेट का पैकेट उठाकर गुस्से से स्लीपर्स पहनता बालकनी में निकल गया। उसने किनकी से उसके तेवर का जायजा लिया और बेबसी से लपकारती मीरा को इसके रूम में लेकर चली गई। बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रही? नबीला बेगम ने उसे प्लेट में चमचा हिलाते देख पूछा, तो एकदम ही गड़बड़ा गई। बस हमें भूख नहीं, अभी मुस्कुरा कर कहती उठ गई थी। अली ने भी उसे देखा, जो काफी दर्द पड़ रही थी। बेटा, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया तुमने? उन्होंने फिक्र से कहा तो अली को भी फिक्र लाहक हो गई। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? क्या डॉक्टर के पास चले? उसने रिदा से कहा, मगर उसने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। नहीं, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इन्हें कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अली, कोई बात हुई है क्या तुम दोनों के बीच? वो काफी दिन से दोनों को चुप चुप सा देख रही थी। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं, बस मेरे देर से ऑफिस से आने से नाराज हो गए मैडम। उसने बर वक्त मामला संभाल लिया था। तो बेटा सही नाराज है वो तुम भी वाकई काफी लेट आने लगे, उन्होंने घूरते हुए कहा तो मुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ। डोंट वरी माई स्वीट मॉम, मैं मना लूंगा आपकी चहेती को। उनके गले में बाहें डालकर सर चूमता कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आए तो वह कहीं न थी। वो बेड पर आकर लेट गया, जानता था वो इससे सख्त नाराज है। वो अपनी हरकत पर परेशान भी था। उसने काफी बार बात भी करनी चाही, मगर रीता ने आगे से कोई जवाब ना दिया था। अपनी सोचों में गुम था जब वो वॉशरूम से मुंह धोकर निकली थी। रीता उसे नजरअंदाज करके जानेमाज में जा रही थी जब वो पुकार उठा। उसने बस एक नज़र उसे देखा, यहाँ उठकर बैठते अपने पास बुलाया। वो लपकारते कुछ फासले पर आकर बैठ गई। नाराज हो? उसका ठंडा पड़ता हाथ थामा, मगर उसे चुकाए खामोश बैठी रही। आई एम सॉरी माय लव, लबों से उसके हाथ छूते पशमा लहजे में बोला, मगर वो हिचकियों से रो दी। दीदी यार प्लीज़ ऐसे मत रो, मुझे न जाने क्या हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी बाहों में जज़ब करते मोहब्बत से बोला, प्लीज़ मुझसे आइंदा मत कहिएगा जाने के लिए। उसके सीने से लगी दरख्वास्त करते अली को मज़ीद शर्मिंदा कर गई थी। कभी भी नहीं कहूँगा। दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर उसकी आंखों में देखा, जहाँ मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। उसने अपने लबों से चूम लिए। रिदा के दिल में इत्मीनान उतरता चला गया था। क्यों बुलाया मुझे? उसने गुस्से से पूछा तो वो कमीनगी से मुस्कुरा दिया कि इतनी जल्दी भूल गई कि क्यों याद किया है मैंने तुम्हें? टेबल पर जरा सा झुक कर उसे देखा। उसने रामीन को रेस्टोरेंट बुलाया था। वो मामला ख़त्म हो गया था, तो अब क्या चाहते हो तुम? उसने झिंझला कर उसे देखा, जो खामखा उसके लिए अजाब बन गया था। ख़त्म नहीं हुआ ये मामला, तो अब शुरू हुआ है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने मनाली की पिक्स बनवाई और फजा सिर्फ मैं। कैसे भूल जाऊँ? 4 माह जेल में रहा हूँ। टेबल पर मुक्का मारकर साथ आवाज में बोला तो रामीन ने खौफ से उसे देखा। सिर्फ मेरा नहीं, ये ईशा का भी प्लान था समझे। और अब चाहते क्या हो तुम आखिर? भाई तुम्हें जान से मार देंगे। उसने संभल कर उसे वार्न किया। तुम्हारे भाई का तो वो हाल करूंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। जहरीली जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अगर मेरे भाई को कुछ करने का सोचा भी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगी अवतार। धीमे मगर गुस्से लहजे में बोली तो अवतार जोर से हंस पड़ा। गुड, आई लाइक इट। पहले मनाइल की जिंदगी बर्बाद करी, फिर भाई की।
अब मेरे सामने ड्रामे कर रही हो। उसके जहर में डूबे तंज पर अमीन जोर सी हो गई। भूलो मत, तुम भी बराबर के शरीक थी। उसने कमजोर सा दिफा करना चाहा। हाँ था, और सजा सिर्फ मुझे मिली इसलिए। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो कुछ भी करके मनाल को मुझ तक पहुंचाओ। उसकी बात पर अमीन को अपना सर घूमता महसूस हुआ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या कह रहे हो ये? उससे से यकदम उठकर जाने लगी। सोच लो अमीन, वरना मैं सबको तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। उसकी धमकी पर पलट कर उसे देखा जो इत्मीनान से बैठा था। उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। मुझ- मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। और उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था इस वक्त। ठीक है, मगर सिर्फ 2 दिन। थामो से कहता पास्ता पर सॉस डालने लगा। उसने दांत पीस कर इस बेगैर शख्स को देखा और तेजी से वहां से निकल गई, जबकि कोने की टेबल पर सर झुकाए बैठा शख्स अब तक बेयकीनी के आलम में सुन सा रह गया था। आज चली जाओगे तुम? मनान ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए उससे पूछा। क्या करूं, 2 दिन से ज्यादा रुकने की बिल्कुल इजाजत नहीं मिली। सैंडविच खाती रीता ने मुंह बनाकर कहा तो हीना भी मुस्कुरा दी। रीता अली मुझसे अभी तक नाराज है ना? उसने दुख से कहा तो रीता ने हाथ थाम लिया। माई छोटी बहन हो तुम इनकी, आखिर कब तक नाराज रहेंगे अपनी जीजी से? उसकी बात पर वो फीका सा मुस्कुरा दी। माही, जाओ बेटा, मीरा रो रही है, शायद भूखी है। सौम्या बेगम ने लाउंज में आकर उसे बताया। वो तो बड़े पापा के पास सो रही थी। हिजरत में उठते हुए बोली। हाँ बेटा, मैं अभी वही थी, अभी उठी है, मगर उधम मचा दिया इस लड़की ने। सिया ने बिल्कुल बिगाड़ दिया उसे। सौम्या बेगम ने झुंझलाते हुए कहा। रिदा और हिना के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि वह बगैर कोई तासुर दिए सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरी बच्ची का कब से रो रही है? मीरब के लिए वो गुस्से से नीचे आई तो वो तेजी से आगे बढ़ी। मैं आ रही थी ताई अम्मी, इनकी गोद से बिलखती मीरब को लेकर सीने से लगाया। माँ बन गई हो बीबी, अब ये लापरवाही छोड़ दो। उसे गुर्द पे वही लाउंज में आ गई। वह गहरी सांस भरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अगर इनके सामने रहती तो किसी न किसी बात पर उसके पीछे पड़ी रहती। सौम्या बेगम अफसोस इन्हें देख कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जिया ने लाउंज में दाखिल होते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी आ गया आज? फाइका बेगम ने खड़ी की तरफ देखा जो 6 बजा रही थी, वरना वो 9 बजे आता था। जी मामा, एक पार्टी अटेंड करनी है आज, उनके बराबर में बैठे थे। इधर उधर नजरें दौड़ाकर बोला। चलो ठीक है, तुम फ्रेश हो लो, मैं चाय भिजवाती हूँ। इनके कहने पर सारी लाता कमरे की जानिब बढ़ गया। दिल तो इस वक्त दुश्मन जहाँ के साथ ढेर सारा वक्त गुजारने का कर रहा था, मगर इसने अब दिल की सुनना छोड़ दी थी। रूम में आए तो दोनों माँ बेटी गायब थी। वो बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दोनों सोफे पर बैठी राजा न्याज में मसरूफ थी। वो भी मुस्कुराहट रोकता वहीं आकर बैठ गया। क्या मेरी बेटी के कान पड़ती रहती हो? उसकी लिट खींच कर मीरब के माथे पर किसकी वसी करके रह गई। मुझे क्या जरूरत है ऐसी हरकतों की? दांत पीसती उससे दूर हुई। अच्छा तो कैसी हरकतों की जरूरत है? यकदम ही करीब होते उसकी आंखों में देखा। वो सटपटा सी गई। दूर रहा कर मुझसे, उसकी गुर्बत व नागवारी से बोलती उठकर मीरा को काट में लेटाने लगी। जियान ने एक दहश नजर इस पर डाली और खुद भी उठ खड़ा हुआ। कपड़े निकालो, जाना है मुझे। सख्त लहजे में कहता निकल गया, जबकि वो बस लब काट कर रह गई। हाँ आ रहे हो तुम? ठीक है, मैं पिक कर लूँगा, डोंट वरी। तोले से बारह करता शायद नहीं, यकीनन ईशा से बात कर रहा था। वो दिल दिल में कुर्ती उसकी मैचिंग की टाई निकालने लगी। ये वाली नहीं जो तुम्हारे ड्रेसेस के साथ रखी है, वो इस शर्ट के साथ मैच करेगी। उसे वाइट शर्ट के साथ ग्रे टाई निकालता देख करीब आकर बोला। तो इसे अपनी धड़कन सुस्त पड़ती महसूस हुई। तो क्या वह जानता था टाई के बारे में? ये सोच उसे जमीन में गाड़ गई थी। कौन सी टाई? मुकलाहट में मुड़ती जोर से उसके सीने से टकराए। वो बिल्कुल ही पीछे खड़ा था। आउच! अंधे हैं आप, नजर नहीं आता आपको? हर वक्त टॉर्चर करने में लगे रहते हैं। अपना सर सहलाती वहां से निकलने लगी, जब सिया ने उसे अपनी जानिब खींचा। ये आसान पूछ सकता हूँ, क्यों किया था मुझ पर? करीब झुककर धीमे लहजे में बोलता उसका दम निकाल गया। मैंने नहीं, वो रीता ने ली थी, उसे पसंद आई थी अली के लिए। उसने इधर उधर देख कर कहा तो ध्यान ने जोर से अलमारी से लगाकर चेहरा दबोच लिया। क्या अब भी यही कहोगी? सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखा जो शौक में खड़ी थी। जवाब दो, यू कोवर्ट कर। उसकी धाड़ पर मलाह ने यकदम आंखें मींच ली। छोड़े मुझे, मैं कोई जवाब दूँ? अब कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए आपको। पूरी ताकत उसका हाथ हटाने की कोशिश करती चीख पड़ी। तुम्हें क्या लगता है मुझसे रिहाई हासिल कर लोगी? चेहरा हल्का सा टेढ़ा करके उसकी आंखों में देखा। मनाल को इस वक्त कोई संकी लगा। पागल हो चुके हैं आप। आपको खुद नहीं मालूम कि मुझे छोड़ना चाहते हैं या अपने साथ रखना चाहते हैं। उसके तो मुस्कुराना लहजे पर इसे तो आग ही लग गई। बाल मुट्ठी में जकड़ कर अपने मुकाबले किया। फिर मेरा पागलपन देखने के लिए तैयार रहो।
जुनूनी लहजे में कहता उस पर चुप किया। दर्द की शिद्दत से मुनाइल की आंखों से आंसू निकल पड़े तो जियान ने झटके से उसे दूर किया और एक नज़र इस पर डालकर लफ्ज़ों खून साफ करता बाहर निकल गया। वो वही अलमारी से लगी बैठती चली गई। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको जियान हैदर, कभी भी नहीं। लबों से रास्ता खून साफ करती सिसक उठी थी। घर पहुंची तो फायदा मलिक लाउंज में ही बैठी थी। इन्हें सलाम करती सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई। सोच सोच कर सर दर्द से फटने लगा था। अब्दाल उसके लिए गले की हड्डी बन चुका था। फर्श बेड पर फेंकते सर पकड़कर बैठ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स का करे भी तो क्या करे। कहाँ से आ रही हो? मोहित के साथ आवाज पर सर उठाकर उसे देखा। सोफे पर बैठा उसी का जायजा ले रहा था और गड़बड़ा सी गई। दोस्त दोस्त के घर गई थी, हवास काबू में करके नॉर्मल अंदाज में बोली तो एकदम ही कदम बढ़ाता उसके करीब आ गया। ये कौन सी दोस्त है जो रेस्टोरेंट में रहती है? तंज़िल लहजे में बोलता तो साकत कर गया। रामी ने उसका चेहरा देखा जहाँ एक तनाव सा था। तुम शक कर रही हो मुझ पर? वो बिदू बोली तो मोहित का दिल चाहा उसके मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानता क्या खेल खेला है तुमने? उसकी धाड़ पर वो 2 कदम पीछे हुई। कौन सा खेल? उसने बेयकीनी से उसे देखा। दिल खौफ से बंद होने को था। कितना गिर गई तुम रामीन, मैं सोच भी नहीं सकता था। मोहित ने तासुब से उसे देखा। क्या कह रहे हैं? क्या क्या? मैंने चीख कर नजरें चुराती दूर हुई। क्या आज तुम अपने कज़न अब्दाल से मिलकर नहीं आ रही जिसने मुझे मैसेज करके रेस्टोरेंट बुलाया था? फोन निकाल कर अब्दाल का मैसेज उसके सामने किया जबकि वह अब्दाल इब्राहिम की इस धोखे पर शशदर से रह गई थी। मैं तुम्हारे और अब्दाल के दरमियान होने वाली एक एक बात जान चुका हूँ रामीन मुर्तज़ा। उसकी सर्द आवाज़ रामीन को लट्ठे की तरह ज़ुबैद कर गई। क्या बिगाड़ा था इस मासूम लड़की ने तुम्हारा? बोलो। करीब आकर से झंझोर डाला। बोलो, जवाब दो। नफरत अंगेज निगाहों से देखता एक बार फिर धाड़ उठा। मैं मैंने कुछ नहीं किया। अपने बाजू से उसके हाथ उठाते घबरा कर बोली। शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज़ नहीं, सच सच बताओ क्यों? क्या ऐसा तुमने मुनाहिल के साथ उंगली उठाकर उसे तनबीह करता रामीन का दिल चीर गया था। आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? जुनूनी अंदाज में बोलती उसको गिरेबान पकड़ गई। मोहित ने हैरत से उसे देखा। क्या बकवास कर रही हो? गिरेबान छुड़ाते जोर से बेड पर फेंका। वो मुंह के बल गिरी। तुम यूनी टाइम से अब तक उससे मोहब्बत करते रहे हो। तुम्हारे दिल में अब तक वो है। मैं रामीन मोहित मलिक होकर भी तुम्हारी नहीं, और वो आज तक तुम्हारे ज़हन दिल में तुम्हारी यादों में कैद है। क्यों मोहित, क्यों? पलट कर उसे देखते फट पड़ी। मोहित को यकीन नहीं आ रहा था ये वही रामीन है जिसे वो जानता था, मगर इसके लिए इतना गिर गई। इसलिए तुमने मुनाहिल के किरदार पर दाग लगवा दिया। बेतासर निगाहों से सिसकती हुई रामीन से पूछा। हाँ, क्या मैंने ऐसा? वो कैसे इस शख्स से मोहब्बत कर सकती थी जिसे मैंने चाहा, जिसको पहली नज़र देख कर ही पाने की आरज़ू की? तो वो कैसे तुम्हें मुझसे छीन सकती थी? बोलो। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अजीब जुनूनी अंदाज में बोली। मोहित ने रंजीदगी से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है वो इन तस्वीरों की वजह से मुझे छोड़कर गई है? अपना हाथ छुड़ाते उसे झटक कर बोला। नहीं रामीन, मुनाहिल हैदर कभी थी ही नहीं मेरी। उसने कभी मेरा हाथ थामने की चाह नहीं कि, कभी मेरी मोहब्बत को अपने दिल में जगह ना दी, और तुमने इस मासूम की जिंदगी बर्बाद करी। उदासी से कहता सुन वजूद और बेयकीन निगाहों से देखती रामीन को देखने लगा। मैंने मुनाहिल को चाहा था, उसकी आरज़ू की थी, मगर जब तुम्हारी मोहब्बत देखी तो मैं हार गया था। मुनाहिल से मोहब्बत भूल गया था। तुम्हारे इश्क से मोहब्बत होने लगी थी मुझे, मगर तुमने सब ख़त्म कर दिया रामीन, सब कुछ। इसे बिल्कुल साकत बैठा देख अलमारी की तरफ बढ़ गया। रामीन के सुन पड़ते वजूद में एकदम ही हरकत हुई। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? उसे पासपोर्ट और ज़रूरी सामान निकालता देख दौड़ती हुई उसके पास आए। फायदा मलिक जो शोर की आवाज़ इधर आई थी, दरवाजे की ओर से सारी बातें सुन चुकी थी। मोहित, कहाँ जा रहे हो बेटा? फायदा मलिक ने कमरे में दाखिल होकर परेशानी से उससे पूछा जो अपना सूटकेस निकाल रहा था। मोहित, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसका बाजू पकड़ती फूट फूट कर रो दी। तुम सिर्फ जिंदगी बर्बाद कर सकती हो एक नागिन की तरह। खुद से दूर करता नफरत से बोला। रामीन को अपना दिल पड़ता महसूस हुआ। मोहित, ये कोई हल नहीं है मसले का बेटा। फायदा मलिक ने उसे समझाना चाहा। वो अपने इकलौते बेटे का ये हाल नहीं देख सकती थी। मामा, अभी मत रोके मुझे प्लीज़, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। इल्तिजाई नज़रों से माँ को देखा। इससे कह दें जब मैं वापस आऊँ तो ये यहाँ नजर ना आए, वरना मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। एक नफरत भरी निगाह से सख्ती रामीन पर डालता बाहर निकल गया। फायजा मलिक बेटे के पीछे गई थी, जबकि वह वहीं अलमारी से लगी बैठती चली गई। आज वह बिल्कुल तहीदामा हो गई थी। जिस शख्स के लिए उसने मुनाहिल की ज़िंदगी तबाह की थी, वही उसे सारी ज़िंदगी के लिए गम सौंप कर जा चुका था। ईशा, मुझे बात
अब्दाल कमरे में उससे बात करने था, मगर कमरे को उजड़ा हाल और बेड पर उससे सकते देख बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो ईशु? वो तेजी से उसके करीब आया तो इसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे अब्दाल, मैं क्या करूं? एक एक बार फिर मुझे इनकार कर दिया, हिचकियों से रोते हुए बोली। तो अब्दाल ने परेशानी से उसे देखा। क्या बोल रही हो, खुलकर बताओ ईशा। उसका चेहरा थाम कर प्यार से बोला। जियान, अब्दाल चैन ने कह दिया, वो मेरा नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी कर लूँ। उसके गले से लगती हुई बोली। अब्दाल की आंखों में यकदम में खून उतर आया। बस अब नहीं ईशा, और नहीं रहोगी तुम। इन लोगों से चुन चुन कर बदले लूंगा, बस सब्र करो थोड़ा। उसके आंसू साफ करते जुनूनी अंदाज में बोला तो ईशा ने अपना हाथ आगे कर दिया। वादा वादा करो मुझसे। अब्दाल ने एक नज़र बहन की बिखरी हालत पर डाली और फौरन हाथ थाम लिया। मेरा वादा है, तुमसे एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। उसे प्यार से तसल्ली देता बाहर निकल गया, जबकि ईशा की आंखों के सामने एक बार फिर वह मंजर आया तो आंसू फिर से रवां हो गए। जान, तुम इसे कब डाइवोर्स दोगे आखिर? अगर इसे बेबी चाहिए तो दे दो। ये उसका सिप लेती ईशा ने झिंझला कर कहा। क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों अपनी बेटी को छोड़ूंगा? जियान की आंखों का रंग यकदम बदला। मेरा कहने का मतलब है, तुम मनाहिल से बात करो। उसने गड़बड़ा कर कहा तो वो एक गहरी सांस भर कर रह गया। ईशा, मैं मीर अब की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आसमान की तारीकियों में देखते बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? ईशा को इसके अंदाज पर अजीब सा महसूस हुआ। देखो ईशा, मेरी एक बेटी है, बीवी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे चाचू ने सौंपी थी। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसे? एक नज़र उसके सफेद बढ़ते चेहरे को देखा और नज़र चुरा गया। तुम शराब के पीछे ना भागो, मैं तो खुद एक सहरा बन चुका हूँ। नहीं जानता कि ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मगर तुम अपने लिए किसी अच्छे शख्स का इंतखाब कर लो। उसके इतने वाज़ेह अल्फाज पर ईशा की आंखों में नमी जमा होने लगी। ये क्या कह रहे हो जियान तुम? तुम्हें अगर उसे नहीं छोड़ना था, मत छोड़ो, मगर मगर मुझे खुद से दूर मत करो। उसके दोनों हाथ थाम कर नम लहजे में बोली। तो जियान ने अपने हाथ छुड़ाकर इसे बेंच पर बिठाया। इस वक्त वो बीच पर थे। ईशा, मुझे बात समझने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं, तुम्हें भूलना होगा मुझे, और मैं अभी कोई अपनी मनपसंद जिंदगी नहीं गुजार रहा। उसे रोता देख सख्त लहजे में बोला। झूठ झूठ बोल रहे हो, झूठे हो तुम। तुम्हारी आंखों में उसका अक्स साफ नजर आता है। तुम मोहब्बत करते हो उससे, इसलिए मुझे अपना रहे। उसका गिरबान पकड़ती चीख उठी। क्या बकवास कर रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से उसके साथ हूँ, समझी तुम? झटके से उसे दूर करता नागवारी से बोली। तो कर लो मुझसे शादी, क्यों नहीं करते? रोती हुई इल्तिजाई अंदाज में बोली, मगर वो नज़र चुरा गया। ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर मेरी दुआ है ईशा, तुम्हें कोई मोहब्बत करने वाला शख्स मिले जो तुम्हारी कद्र करे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। उसे साकत खड़ा एक नज़र देखकर अपने कार की जानिब बढ़ गया। जियान जियान, ऐसे मत जाओ जियान, प्लीज़। उसकी गाड़ी को दूर जाता देख यकदम उसके वजूद में हरकत हुई थी, मगर वो जा चुका था फिर कभी ना आने के लिए। रात के 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो वो कहीं नजर न आई। उसने साइड लैंप ऑन किया और स्लीपर्स पहनकर मीरब के कमरे की जानिब बढ़ गया। वो परेशान सी उसे गोद में लिए टहल रही थी। क्या हुआ? उसने करीब आकर पूछा तो मनाइल ने बस एक नज़र उसे देखा। मीरू का बुखार नहीं उतर रहा, शाम में हल्का सा था तो मैंने सिरप दे दिया था, मगर अब तेज हो गया है। उसने आहिस्ता से बताया तो जियान का खून खौल उठा। दिमाग खराब है तुम्हारा? इतनी छोटी सी बच्ची को बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई दे दी? उस पर डांटते हुए मीरब को उसकी गोद से लिया तो वो बुखार में तप रही थी। मनाहिल शर्मिंदगी से सर झुका गई। क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का? उसको घूरते हुए कमरे से निकला। मुझे नहीं पता था, मैं समझी ठीक हो जाएगी। लब काटती उसके पीछे आई। शट अप, मुझे मजीद कोई बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। जिंदगी अजाब करती है। उसे झिड़कता केस लेकर बाहर निकल गया। वो भी आंखों में नमी आई साफ करते उसके पीछे निकली थी। उसे इस शख्स से कोई गस न थी। इस वक्त सिर्फ बेटी की परवाह थी। सफ़र में सारा वक्त मीरब में रोती रही थी, जबकि इनके दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई थी। मैंने प्रॉपर चेकअप कर लिया है, यू डोंट वरी। अक्सर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप बस एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मनाहिल की परेशान शक्ल देखकर कहा। मिस्टर जियान, आप ये मेडिसिन ले लें। इंजेक्शन तो मैं दे चुकी हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी मीरब। नुस्खा इसको देते बोली तो दोनों उठ खड़े हुए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दोनों मुस्कुराकर कहते डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गए। मीरा मनाहिल की गोद में सो रही थी। मैं मेडिसिन ला रहा हूँ, गाड़ी में जाकर बैठो। उसे कीस थमाता आगे बढ़ गया। वो खामोशी से पार्किंग में आकर कार में बैठ गई। दिल इस वक्त बहुत बोझल सा हो रहा था। अपनी तस्दीक एक बार फिर से याद आई तो आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगे। काश रमीन तुम अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करती। तसव्वुर में इससे शिकवा ना होती। बाहर देखने लगी।
جہاں سے زیان آ رہا تھا اس نے فوراً آنسو صاف کیے اور رخ موڑ لیا۔ زیان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور خاموشی سے کار سٹارٹ کر دی۔ جانا تھا وہ رخ موڑے کیا کر رہی ہے، لب بھیج کر نگاہیں ونڈ سکرین پر جما دی۔ کیا بات ہے، جب سے تم یہاں آئی ہو کافی چپ چپ سی لگ رہی ہو۔ فائقہ بیگم نے فکر مندی سے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایک ہفتے سے یہاں رکنے آئی تھی جس دن سے موہت گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی کیونکہ ایک بار بھی اس نے نہ ماں سے کوئی رابطہ کیا تھا نہ اس سے وہ کتنے ہی کالز اور میسیجز کر چکی تھی، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس کے ہجر میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور زرد پڑتی رنگت اس کے اندرونی توڑ پھوڑ کی غمازی کر رہے تھے۔ گھر پر اس نے موہت کے آؤٹ آف کنٹری کا ٹور بتایا تھا۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی کچھ بخار سا فیل ہو رہا ہے بس، اس نے مسکرا کر ٹالتے ہوئے کہا تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ موہت یاد آ رہا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو رامی نے نمی چپاتے سر ہلا دیا۔ میری پیاری بیٹی، اس کا ماتھا چوم کر مطمئن ہو گئی تھی۔ چلو اٹھو نیچے چلو، کچھ کھا لو، بالکل اچھی نہیں لگ رہی ایسی ڈل ڈل سی۔ اس کی بس مردہ سی شکل دیکھ کر بولی، ماما آپ چلیے میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ میں کیسے سامنا کروں گی بھائی آپ کا اور مناہل کا؟ اس سوچ نے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم کر دی تھی۔ منہ دھو کر نیچے آئی تو سب کھانا کھا چکے تھے۔ زیان ابھی آفس سے آیا تھا، وہ اب اکثر ہی لیٹ آتا تھا۔ رامین جا راجا ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، اس کے پکارنے پر وہ مسکراتی ٹیبل پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا غائب رہتی ہو، لگ ہی نہیں رہا گھر آئی ہو، اس کے بال تھپکتے پیار سے بولا تو وہ مزید خود کو زمین میں دھنستا محسوس کرنے لگی۔ آپ بھی تو اتنا لیٹ آتے ہیں، بھائی کیسے پتہ چلے گا، اس نے شکایتی لہجے میں کہا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اسی وقت مناہل ان دونوں کا کھانا لے کر ٹیبل پر آئی تھی اور خاموشی سے سب لوازمات رکھ کر واپس جانے لگی۔ رامی نے ان دونوں کے بیچ خاموشی بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ میرا کو کس سے پوچھ کر تم نے اپنے چہیتے بھائی کے گھر بھیجا تھا؟ اسی سخت آواز پر وہ جاتے جاتے رک گئی۔ عمر جا رہا تھا تو ریدھا نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو۔ آہستہ سے بول کر ایک نظر رامین کو دیکھتی جانے لگی جو بظاہر کھانے میں مگن تھی۔ آئندہ اگر میری بیٹی کو مجھ سے پوچھے بغیر کہیں بھیجا تو نتائج کے لیے تیار رہنا۔ چمچہ زور سے پلیٹ میں پھینکا تو دونوں نے بیک وقت زیان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ بھائی، رامین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے نکل گئی تھی۔ سوری یار، تم کھانا کھا، میرا موڈ نہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، ان دونوں کے بیچ اتنی تلخیاں دیکھ کر خود کو ندامت کی انتہا گہرائیوں میں گراتا محسوس کرتی سی سک اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنا تلخ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا، شاید جس آگ میں وہ جل رہا تھا اس میں سے بھی گھسیٹنا چاہتا تھا، یا شاید اس کی دوری نے ایسا کر دیا تھا جو اس کی موجودگی میں کمرے تک سے غائب ہو جاتی تھی، اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ عجیب چنچلائی ہوئی بیزار سی طبیعت ہو رہی تھی۔ کب سیلون میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا، تھک کار کر اٹھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آئے تو حسب توقع خالی تھا۔ میرب کے روم میں آیا تو وہ کاٹ میں لیٹی اپنے پاؤں ہلا رہی تھی جبکہ وہ جہاں بھی نہ تھی۔ اسے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ اسے لے کر بالکنی میں آئے تو وہ چیئر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ خاموشی سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اٹھ کر تیزی سے اندر جانے لگی مگر وہ کلائی تھام کر روک گیا۔ ان آنسوؤں کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تو مناہل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ آپ کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی یہ آنسو آپ کے لیے ہے۔ اپنے گال رگڑتی اسے آگ لگا گئی، جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر قریب کیا تو یکدم چیخ اٹھی، یہ کس نے کہا میرا حق نہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ اب مجھے تم جیسی بے وفا لڑکی کی ضرورت نہیں، پھنکارتے ہوئے بولا تو مناہل نے زہرخند نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر کیوں اتنی آگ لگ رہی ہے؟ اگر میں کسی کے لیے بھی آنسو بہا رہی ہوں تو؟ اپنے بالوں کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے طنز سے بولی۔ زیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ایک اور جھٹکا دے کر قریب کیا تو میرب جو اندھیرے میں ماں کو نہ دیکھ سکی فوراً اس کی طرف ہمکنے لگی۔ تمہاری ان آنسوؤں پر بھی میرا حق ہے، اگر یہ کسی اور کے لیے گرے تو میں خود اپنے ہاتھ سے جان لے لوں گا۔ جنونی لہجے میں اپنی گرم سانسیں اس پر چھوڑتا ایک بار پھر اس کی آنکھوں کی زمین نم کر گیا۔ کیسے برداشت کرتا تھا اسے کسی اور کے لیے روتا دیکھ؟ چھوڑے مجھے، روتے ہوئے چیخی تو میرب بھی رونے لگی۔ زیان نے ایک نظر بیٹی کو پھر سے دیکھا۔ میری بیٹی سے غفلت بالکل برداشت نہیں کروں گا، پکڑو اسے چھوڑتا میرب کو دینے لگا جو شاید بھوک سے رو رہی تھی۔ کیوں؟ اس پر تو آپ کا حق ہے، بس سنبھالے خود ہی، طنزیہ کہتی ایک نظر روتی بیٹی کو دیکھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بات پر سختی سے لب کھینچتا میرب کو لے کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ جان بہت ضدی ہیں آپ کی ماما، اسے تھپکتا چپ کرانے لگا مگر وہ ان دونوں سے بڑی ضدی ثابت ہوئی تھی۔ یکدم ہی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ زیان بھی بوکھلا گیا۔
काफ़ी देर तो ठहर ठहर कर चुप कराता रहा, मगर फिर झिंझलाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। संभालो, इसे बिल्कुल अपनी तरह जिद्दी बना दिया है। झिंझलाकर सोफे पर लेटी मुनाहिल पर मीरब को लिटा दिया, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गले से लग गई। उसने भी अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने अंदर जज़ब किया तो फौरन खामोश हो गई। जियान ने दांत पीस कर दोनों को देखा। हाँ, बस एक मैं ही पागल हूँ। चीखता हुआ कमरे से निकल गया। मुनाहिल ने दुख से उसे जाता देखा और सर सोफे की पोई से टिका गई। मुनाहिल, रामीन उसके कमरे में आई तो मुझे जाए नमाज त्याग कर रही थी। उसको देखकर चेहरे पर नागवार तासरत आ गए, जिन्हें उसने बखूबी देखा था। मुझे मुझे बात करनी है तुमसे, नजरें झुकाकर धीरे से बोली। मेरे पास बात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़े। चले जाओ यहाँ से, मैं ताज़ा लहजे में कहती मीरब के कमरे में जाने लगी। रामीन ने सर उठाकर इसे देखा और करीब आ गई। प्लीज़, एक बार मुनाहिल, प्लीज़। खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुनाहिल ने हैरानगी से उसे देखा। अब कौन सा इल्ज़ाम लगाने आई हो? उसके आंसू देखकर बोली। सही कह रही हो, मैंने हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोला है, बस उसी की सज़ा काट रही हूँ। उसे देखती नेताम्बत से बोलती आंखों का किनारा साफ करने लगी। क्या कह रही हो? कैसी सज़ा? उसे इसकी अबतर हालत की वजह अब भी समझ नहीं आई थी। मुनाहिल, मैंने अपनी खुद वर्जी में एक शख्स को पाने के लिए तुम्हारी और भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें दुख दिया, देखो आज मैं भी खाली हाथ रह गई। यकदम ही उसके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुनाहिल ने घबरा कर उसे बेड पर बिठाया। देखो रमीन, यहाँ बैठो और बताओ सही तरह से क्या हुआ है। अपना गम भूल बार कर उसकी जुड़ी हालत पर बेचैन हो गई। भाई मोहित ने मुझे सब बता दिया कि मैं कितनी गलत थी। तुम्हें तो इसमें कोई दिलचस्पी न थी और मैंने क्या क्या तुम्हारे साथ एक बार भी तुम्हारी बात न सुनी और ईशा और अब्दाल के साथ मिलकर उसके सामने मुझे बनी सी सकुटी थी और सारा करूर सारा तनतना खाक हो गया था। माही, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। माही, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। मुनाहिल उसके दोनों हाथ थामे गिड़गिड़ा रही थी, जबकि वो सकते की कैसी कैफियत में बैठी थी। मोहित चला गया मुझे छोड़कर। माही वो कहता है, तुम जैसी घटिया लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। देखो मुनाहिल, तुम्हें दुखी करके मैं भी खुश नहीं हूँ। अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली। मुनाहिल यकदम होश में आई थी। मेरा रब गवाह है रामीन, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। उसके दोनों हाथ थाम कर बोली तो और शिद्दत से रोने लगी। क्यों मुनाहिल, क्यों किया इतना सब्र? क्यों न बताई मेरी हकीकत सबको? शायद मैं गुनाहों के दलदल से निकल जाती। नदामत से बोली। मुनाहिल की आंखें भी नम हो गईं। बस रामीन, अल्लाह से दुआ करो, दिल बदलने वाला तो वो है ना, वो ही मोहित को तुम्हारे पास वापस लाएगा। मेरी बहन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। मोहब्बत से उसका चेहरा थाम कर नम लहजे में बोली तो इस अजीम लड़की को तकती चली गई। कितना छोटा महसूस कर रही थी वो आज, खुद को दुख और नदामत को छोड़ पड़ी थी। इसकी सूरत उसकी आंखों के आगे अचानक अंधेरा आया था और अपने आवाज़ खोती बेड पर गिरती चली गई। मुनाहिल ने परेशानी से उसे पुकारा। रामीन, रामीन क्या हुआ? होश में आ प्लीज़। उसके गाल थमक कर होश में लाना चाहा, मगर वो बेसुध पड़ी थी। वो भागते हुए कमरे से बाहर आए। ताई, अम्मी, बड़े पापा जल्दी आए। उसकी परेशान आवाज़ पर सब दौड़ते हुए उसके कमरे में आए और रामीन को बेहोश देखकर फिक्रमंदी से आगे बढ़े। क्या हुआ रामीन को? क्या किया है तुमने? फायका बेगम बेटी को सीने से लगाकर इस पर चीखीं, जो पहले ही फूट फूट कर रो रही थी। ध्यान कर पा न था। रहम और मुर्तज़ा साहब आनन फानन इसे लेकर हॉस्पिटल भागे थे। ज़ियान को जैसे उसके बारे में पता चला था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा हॉस्पिटल आया था। क्या हुआ रामीन को? कैसी तबीयत है उसकी? परेशानी के आलम में लंबे लंबे डग भरता राहम के पास पहुंचा, जो आईसीयू के बाहर टहल रहा था। यह डॉक्टर्स ने दुआ के लिए कहा है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसे। उसके कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से तफसील बताई तो ज़ियान को अपना सर घूमता महसूस हुआ। उसके फूल जैसी बहन को अचानक क्या हो गया था? ताई, अम्मी और मुर्तज़ा साहब भी वहीं खमसदा बैठे दुआएं मांग रहे थे, जबकि वो अकेली कोने में खामोशी से आंसू बहा रही थी। वही इंजेक्शन लेकर आता हूँ तो ताई अम्मी के पास बैठ। उसका कंधा थपक कर बाहर निकल गया था। वो भी शौक की कैफियत में माँ के पास आ गया। ये कैसा हो गया मामा? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी वो। परेशानी से अपने बालों को जकड़ता हुआ बोला तो वो रोना शुरू हो गई। इसकी वजह से हुआ है राम, मेरी बच्ची का ये हाल। फायका बेगम ने चीखा। नफरत से मुनाहिल की तरफ इशारा किया तो ज़ियान ने हैरानी से माँ को फिर इसे देखा, जो कुछ सहमी हुई लगी। वो मीरब के पास गई थी, मगर इसने न जाने क्या किया कि मेरी बच्ची आईसीयू में पहुंच गई। फायका बेगम की बात पर ज़ियान ने एक कहर बरसाती निगाह इस पर डाली और लंबे लंबे डग भरता उसके पास आया तो वह घबरा कर यकदम उठ खड़ी हुई। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। गले में आंसुओं का गोला टकरा था, मगर इसने करीब आकर सख्ती से इसका बाजू पकड़ा। क्या कहा था तुमने ऐसा कि वो इस हाल को पहुंच गई?
धीमे मगर सहज लहजे में बोला तो मोनाली की आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगे। अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ मैंने इसने सफाई देनी चाहिए। जब जियान ने जोर से चेयर पर फेंका। अपने नापाक इरादे में रब को बीच में मत लाओ। उंगली उठाकर उसे तनबीह की। मनाइल हैरानी से उसे देखा। याद रखना मनाइल, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ कब्र में उतारूंगा। जरा सा झुक्का नफरत अंगेज अंदाज में पुकारता बगैर उसकी कोई बात सुने निकलते चला गया। जबकि वो साकत से बैठी उसके लफ्जों का जहर खुद में उतरता महसूस कर रही थी। पूरे वजूद में एक सन्नाटा सा छा गया था। क्या इसकी नज़र में इतनी गिरी हुई लड़की थी वो? अंदर से एक आवाज़ आई थी। दिल चाहा खूब चीख कर रोना शुरू कर दे और जियान हैदर का गिरबान पकड़ ले कि कब तुमने मुझे किसी गैर शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा है? जवाब दो। या अल्लाह, इस शख्स को मौका देने से पहले ही तो मेरी जान ले ले। दिल की गहराइयों से अपने लिए बद्दुआ की थी। आंसू को रोकने की कोशिश करती सख्ती से अपने लब भींच गई। बेटा परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। मुर्तज़ा साहब ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा तो अपने आंसू रोकते सर हिला गई। वो भी प्रेयर रूम की जानिब बढ़ गए। उसने विट करती फायका बेगम को एक नज़र देखा और अपने गाल रगड़ती तेजी से कॉरिडोर से निकल गई, क्योंकि मजीद अब को एक पल भी यहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। रात 11 बजे के करीब आईसीयू का दरवाज़ा खोला तो सभी डॉक्टर के पास दौड़े चले आए थे। कैसी है डॉक्टर मेरी बेटी? अब मुर्तज़ा साहब ने नहीफ सी आवाज़ में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, आप लोग मिल लीजिएगा। डॉक्टर तसल्ली अमेज़ मुस्कुराहट से कहता आगे बढ़ गया। सबके चेहरे यकदम ही खुशी से खिल उठे थे। रिदा और अली भी शाम से यहीं मौजूद थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की जान बचा ली, फाइका बेगम नम लहजे में बोली। तो जियान ने मोहब्बत से इन्हें अपने साथ लगा लिया। मामा घर जाए, अब आप थक गई होंगी। उसने उनकी थकी हुई शक्ल देखी जो दोपहर से बस रो रही थी। मामी, आप और माई घर चले जाएं कुछ देर के लिए, क्योंकि मीरा भी माई के लिए रो रही थी। नीचे रहा वेट कर रहे हैं। हिना अभी हॉस्पिटल आई थी। घर पर वही मीरा साहब की देखभाल कर रही थी, लेकिन वो तो दोपहर में ही चली गई थी। फाइका बेगम ने मुंह बनाकर कहा तो हिना ने हैरत से उन्हें देखा। लेकिन मामी, वो तो घर नहीं आई, मैं सुबह से घर पर ही थी। उसने परेशानी से बताया तो अली और रिदा भी वहीं आ गए, जबकि जियान को अपने पैरों के नीचे से ज़मीन की सख्ती महसूस हुई। क्या कह रही हो हिना? घर फ़ोन करो एक बार। मुर्तज़ा साहब ने भी परेशानी से कहा तो जियान ने फ़ौरन घर कॉल मिलाई। उमर मनाइल घर पर आई है? पूरा घर चेक करो, वो घर पर नहीं है या नहीं। दिल की बेतरतीब होती धड़कनों को नज़रअंदाज करता मुसलसल परेशानी से उधर उधर टहल रहा था। नहीं भाई, आप भी घर पर नहीं है, वो तो आप लोगों के साथ थी। थोड़ी देर बाद उसके हाँफती आवाज़ आई तो जियान हैदर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। घर पर नहीं है वो। काल काटता गुस्से में पलटा था। सभी चेहरे पर तशवीश फैल गई थी। क्या मतलब है जियान? कहाँ चली गई वो? अली ने मुतवक्किर अंदाज में इससे इस्तफसार किया, मगर वो तेजी से कॉरिडोर से निकल गया। अली भी उसके पीछे भागा था। उसका रुख प्रेयर रूम की जानिब था। जहन में दोपहर में की गई बातें और इसका जर्द पड़ता चेहरा घूम रहा था। क्या कुछ ना कहा था उसे? कैंटीन, वेटिंग एरिया, प्रेयर रूम, दोनों ने हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छान मारा था, मगर वो कहीं ना थी। मनाहिल हॉस्पिटल की पार्किंग में उसकी गरजदार आवाज़ गूंज उठी थी। हर जगह देख लिया था, मगर वो कहीं न थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे। अली ने उसकी दीवाना जैसी हालत देखकर दिलासा देना चाहा, मगर वह इस वक्त होश आवाज़ में ना था। डैम इट, फ़ोन उठाओ मेरा। बार बार उसके नंबर पर कॉल कर रहा था, जिसे वो उठा नहीं रही थी। क्या हुआ, कुछ पता चला? हिना के बताने पर राम भी दौड़ा चला आया था। जियान ने एक नज़र इन दोनों को देखा, आगे बढ़ गया। कहाँ जा रहा है जियान? पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, चल। इसे हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते देख राम बोल उठा। कर चुका हूँ इन सबको अलर्ट। हॉस्पिटल के सीसीटीवी रूम की जानिब बढ़ा तो वह दोनों भी उसके साथ हो लिए थे। सर किधर आ रहे हैं? यहाँ आना अलाउ नहीं है। गार्ड ने उसके सीने पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर जियान ने उसे गिरफ्तार से पकड़कर दीवार से लगा दिया। अगर खैरियत चाहता है तो साइड पर हो जा, नहीं तो इसी हॉस्पिटल में अपने इलाज करवा रहा होगा। सर्द लहजे में बोला तो गार्ड ने घबराकर अली और राम को देखा। वो भागते हुए आ रहे थे। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गार्ड का गिरबान चढ़ाकर जियान को दूर किया। हाँ हो गया हूँ पागल, वो गायब हो गया और मुझे इसका कुछ अता पता नहीं कि किस हाल में होगी वो। दहाड़ कर उसने राम को जोर से धक्का दिया। वो दोनों अच्छी तरह से इसकी कैफियत समझ रहे थे। इतने में पुलिस भी आ गई थी। पूरे दिन के हॉस्पिटल की वीडियोस निकलवाई तो वह दोपहर तक वहीं उन लोगों के साथ ही बैठी थी। सर सारी वीडियोस देख ली, कुछ नहीं मिल रहा। कांस्टेबल की बात पर जियान ने गुस्से से उसे देखा तो ऑफिसर भी बोल पड़ा, हॉस्पिटल के बाहर की फुटेज निकालो। जियान साहब, बाफिक्र न करें, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे आपकी मिसेस को ढूंढने में। उसके तसल्ली देने पर भी उसे फर्क न पड़ा। उसकी निगाहें तो स्क्रीन पर ठहर गई थी, जहाँ से वो अकेली बाहर निकली थी। मैं उसके बुखार पर हम और अली ने भी फुटेज को देखा। वो हॉस्पिटल से पैदल कहीं जा रही थी। जब एक हाई रूफ उसके आगे आ रुकी, वो तेजी से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगी।
जब भी दो नकाबपोश गाड़ी से निकले थे और पीछे से उसे पकड़कर रुमाल से उगाते, तड़पते इमरान को गाड़ी में डालकर ले गए थे। बेबसी से दाटते हुए अपना हाथ टेबल पर दे मारा। जियान, मेरे भाई कुछ नहीं होगा, माही को तू सब्र से काम ले। उसके हाथ से बहते खून को देख बोला, सर हम गाड़ी का नंबर निकलवाते हैं, इस एरिया में ही होंगे ये लोग। ऑफिसर ने लोगों से कहा था बाहर निकला तो अली भी उसके पीछे गया था, जबकि वो सर पकड़े बैठा अपनी जिंदगी को दूर जाता महसूस कर रहा था। अपने हाथ से बहते खून की इसे कोई परवाह न थी। जब से इसे होश आया था सभी उसके पास थे, मगर उसके आगे इस शख्स को ढूंढ रही थी जिसकी हरकत से बेखबर सात समंदर पार बैठा था। ये सोच उसे फिर से अजियत में धकेलने लगी। प्लीज मोहित, बस एक मौका दे दो। तसव्वुर में दिलरुबा से मुखातिब हुई तो आंसू खामोशी से निकल कर पट्टी में जमा हो गए। रामीन उठो, सूप पी लो। रिदा और हिना इसी के पास थी। वो खामोशी से उठकर बैठ गई। हिना भाई और मुनाहिल मिलने नहीं आए अब तक। उसने हिना की उदास शक्ल देखकर पूछा, क्योंकि वो सुबह से इनका इंतजार कर रही थी। इसकी बात पर वो दोनों ही नजरें चुरा गई। क्या बात है, तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? इनकी गैर मामूली खामोशी से खटकने लगी थी। कुछ नहीं हुआ पागल लड़की, तुम अपनी तबीयत की फिक्र करो, सब वो डिस्चार्ज हो जाओगी तो देख लेना खुद कर जाकर। इन्होंने संभल कर बर वक्त बात बनाई तो होश उसके चेहरे के तासरात देखने लगी। हाँ सही कह रही है हिना, रिदा भी मुस्कुराकर बोली जब ईशा कमरे में दाखिल हुई थी। हेलो, क्या हाल है? मुस्कुराती हुई रामीन के करीब आई तो वो महज हिला गई, वरना दिल तो चाह रहा था इसे धक्के देकर बाहर निकाल दे। मैंने जब सुना तुम्हारे बारे में मैं तो हैरान ही रह गई कि भला तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी लाहक हो गई जिसके लिए हॉस्पिटल ही पहुंच गई। उसके तमस्खराना लहजे पर रामीन के चेहरे पर एक तारीख से साया लहराया। हिना और रीता ने नागवारी से उसे देखा। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है हो जाता है अक्सर वीकनेस की वजह से, हिना ने नागवारी से कहा। तो रामीन की आंखों में नमी जमा होने लगी, जिसे वो अपनी बचपन की दोस्त समझती थी, आज उसकी जात पर खुलेआम तबसरा कर रही थी। मोहित, तुम्हारी इतनी खराब हालत को सुनकर भी नहीं आया, हैरत है। उसने मसनूई ताज्जुब से कहा। हिना का बस नहीं चल रहा था उसका हश्र बिगाड़ दे। ये मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है ईशा, तुम क्यों सबकी मैरिड लाइफ में घुसने में लगी रहती हो? रिदा के तंज पर ईशा ने नागवारी से उसे देखा। क्यों, ये मेरी कज़न नहीं? जरा इसे मनाहिल का भी तो बताओ, कहाँ भागी फिर रही है? एक नज़र रामीन के जर्द पड़ते चेहरे पर डालती उठ खड़ी हुई रामीन ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? उसका दिल बहुत जोर से धड़का। क्या तुम्हें नहीं मालूम? ईशा ने मसनूई हैरानगी से कहा तो हिना और रिदा भी उठ खड़ी हुई। तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो चुकी हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। उससे पहले कि वो कुछ बोलती हिना ने बात काटते हुए उसे झिड़क दिया। वह जहरीली नजरों से देखती रामीन के पास आई। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ, इस तरह डिप्रेस्ड बड़ी अच्छी नहीं लग रही। उसका गाल टपक कर मुस्कुराती बाहर निकल गई, क्योंकि जो काम वो करने आई थी वो हो चुका था। सच सच बताओ हिना, क्या हुआ है मनाहिल को? उसने रोते हुए उसके हाथ थामे तो हिना ने बेबसी से उसे अपने साथ लगा लिया। कुछ नहीं हुआ रामीन, उसे इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएगी। उसने गमगीन लहजे में कहा तो रामीन को लगा हवा में यकदम ही ऑक्सीजन कम हो गई हो। ये ये क्या कह रही हो हिना? कहाँ गई हो? भाई कहाँ है? उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा तो रिदा भी उसके पास ही आ गई। तुम फिक्र मत करो रामीन, सब जैन भाई के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। उसे तसल्ली देते हुए बोली तो यकदम बैठ से उठने लगी। मुझे घर जाना है, मुझे भाई से बात करनी है। नकाहत की वजह से वो मुश्किल उठते बोली तो इन दोनों ने उसे थाम लिया। मनाहिल के लिए इसकी बेचैनी इनके लिए काफ़ी हैरान कुन भी थी। प्लीज़ रामीन, अपनी हालत तो देखो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, कल तो वैसे भी घर जाना है तुम्हें। रिदा ने उसे समझाना चाहा मगर वो शिद्दत से रो पड़ी। नहीं प्लीज़, मुझे भाई से मिलना है अभी बस। उसकी हालत को देखा तो उन्होंने परेशानी से एक दूसरे को देखा। अच्छा तुम खुद को संभालो, मैं राम को बुलाती हूँ, अभी घर चल रहे हैं। ईदा ने उसके आंसू पहुँचते दिलासा देकर खुद से लगा लिया। शायद जिंदगी में पहली बार उन्होंने रामीन को किसी के लिए इस तरह रोते देखा था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।